بائبل مقدس ہے تو آپ اس کتاب کو جو ہے وہ کھلا رہنے دیجئے گا۔ مکاشفہ کے 13ویں باب کا جو پہلا حیوان ہے ہم اس پر بات کریں گے۔ ہم مکاشفہ کی کتاب کے 13ویں باب کے دوسرے حیوان پر بھی بات کریں گے، اور یاد رکھیے یہ ایک پروفیٹک سرمن ہے، یہ ایک نبوتی کلام ہے۔ کچھ باتوں کی سمجھ نہ آئے مشکل نہیں ہے، ہم دوبارہ ان پر آئیں گے۔ گزشتہ ہفتے کا جو پیغام تھا وہ کیا تھا؟ مکاشفہ 11ویں باب کے کتنے دعا برکت پائی گزشتہ ہفتے آپ نے؟ آمین۔ یہ مکاشفہ کی کتاب کی باتیں ہم کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ اس کی کتاب کے پہلے باب کی 3 آیت میں لکھا ہے مبارک ہے وہ جو اس کتاب کا پڑھنے والا ہے، اور وہ مبارک ہے جو اس کتاب کے سننے والے ہیں، اور وہ مبارک ہے جو عمل کرتے ہیں، کیونکہ وقت کیا ہے؟ کس کا وقت نزدیک ہے؟ ہمارے خداوند یسوع مسیح کے آنے کا وقت کیا ہے؟ نزدیک ہے۔ اور اگر ہماری زندگی میں یسوع مسیح نہ بھی آئے تو ہمارے مرنے کا وقت دن بدن نزدیک ہوتا جا رہا ہے، اور ہم قبر کے نزدیک پہنچتے جا رہے ہیں۔ ہمارے چہروں پہ جھریاں پڑتی جا رہی ہیں، ہمارے بال سفید ہوتے جا رہے ہیں، اور ہم دن بدن ویک ہوتے جا رہے ہیں، دن بدن اپنے بڑھاپے کی طرف جو ہے وہ بڑھ رہے ہیں۔ اس لیے اس کتاب کی باتوں کو جاننا بڑا ضروری ہے۔ مکاشفہ کی کتاب کے 13ویں باب کی پہلی آیت کو دیکھیں تو میرے ساتھ سب مل کر پڑھیے، کیا لکھا ہے؟ اور میں نے ایک حیوان کو سمندر میں سے نکلتے ہوئے دیکھا۔ دیکھیں یہ کون لکھ رہا ہے؟ یوحنا عارف۔ تو یوحنا عارف یعنی یوحنا یسوع مسیح کا آخری چہیتا شاگرد لکھتا ہے کہ پھر میں نے ایک حیوان کو سمندر میں سے نکلتے ہوئے دیکھا۔ کیا چیز سمندر میں سے نکلی ہے؟ حیوان۔ اچھا، جب آپ نے پیدائش کی کتاب کا مطالعہ کیا تو کیا آپ نے پیدائش کی کتاب میں کوئی ایسا جانور دیکھا جس کی شکل آپ کو سامنے نظر آ رہی ہے؟ بائبل میں کہا خدا نے جانور بنائے، اور جانوروں کو بنا کے خدا آدم کے پاس لایا، اور جو نام آدم نے جس جانور کا رکھا وہ اس کا نام ہو گیا۔ جس طرح کا بھی جانور خدا نے بنایا آج تک وہ ویسے کا ویسا۔ کیا آپ نے کبھی چڑیا گھر وزٹ کیا؟ کیا آپ نے کبھی ایسا شیر جس کے 7 سر ہو اور سروں پر 10 سینگ ہو دیکھا؟ نہیں دیکھا۔ کیونکہ آپ نے دیکھا کیوں نہیں؟ کیونکہ خدا نے ایسا بنایا نہیں ہے حقیقت میں۔ یاد رکھیں کہ ہم یہ آیت کہاں سے پڑھ رہے ہیں؟ مکاشفہ کی کتاب سے پڑھ رہے ہیں، اور جو مکاشفہ کی کتاب ہے وہ ایک علامتی کتاب ہے۔ کون سی والی کتاب ہے؟ علامتیں اس میں استعمال ہوئی ہیں، اس میں نبوتیں استعمال ہوئی ہیں۔ ہم نے پچھلی دفعہ دیکھا کہ وہ عورت بیابان میں کتنے عرصے تک بھاگ گئی؟ 1260 دنوں تک۔ اور 1260 دن کیا بنتے ہیں؟ 42 مہینے۔ 42 مہینے 1260 دنوں کے بنتے ہیں، اور 1260 دن۔ پھر بائبل میں لکھا دور، دوروں، نیم دور، زمانہ، زمانوں، آدھا زمانہ۔ یہ نبوت کی باتیں ہیں۔ آمین۔ ہم یہ جو بات مکاشفہ کی کتاب سے پڑھ رہے ہیں تو رسول کہتا ہے کہ میں نے ایک حیوان کو سمندر میں سے نکلتے ہوئے دیکھا۔ اور جب ہم سمندر کی بات کرتے ہیں تو آپ کہیں گے پادری صاحب تو آپ ٹھیک کر رہے ہیں، بائبل میں ایسا لکھا ہے، مگر یہ حیوان کیا ہے؟ سوال اٹھتا ہے دل میں، حیوان ہے کیا؟ حیوان اس چیز کو کہتے ہیں جسے قانون کی پرواہ نہیں ہے۔ ایک محاورہ ہے a bull in the china shop۔ حیوان ہے، اس کو قانون کا نہیں پتا، وہ توڑ پھوڑ کرے گا۔ حیوان وہ ہے بیسیکلی جس کو قانون کی پاسداری نہیں ہے۔ اب جب ہم اس بات کی بات کرتے ہیں تو حیوان کی بات کرتے ہیں، اور حیوان کی بات کرتے لکھا ہے کہ میں نے ایک حیوان کو سمندر میں سے نکلتے ہوئے۔ لیکن سمندر کیا ہے؟ حیوان پر تو ہم بات کریں، حیوان کہاں سے نکلتا ہے؟ مکاشفہ کی کتاب کے 13ویں باب میں پہلا حیوان کہاں سے نکلتا ہے؟ آپ بتائیں مجھے سمندر کیا ہے؟ رسول کہتا ہے میں نے ایک حیوان کو سمندر میں سے نکلتے ہوئے دیکھا۔ دیکھیے یہاں پہ قیافہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب آپ بائبل کو پڑھیں تو بائبل کو قیافے سے ہم نہیں پڑھ سکتے۔
समुंदर क्या है? और मुकाशवा की किताब का लिखारी खुद जवाब देता है। मुकाशवा की किताब के 17वें बाब की आयत नंबर 15 में जवाब ये है, खुदा के बंदे को फरिश्ते ने एक बुरी औरत दिखाई। हमने गुज़श्ता हफ्ते 2 औरतों की बातें की चंद हफ्ते पहले। एक वो औरत जो चांद पर खड़ी है, दूसरी वो औरत जो हैवान पर बैठी हुई है। और जो औरत हैवान पर बैठी थी वो औरत पानियों पर बैठी है 17वें बाब में। और खुदा का बंदा फरिश्ते से पूछता है कि ये औरत कौन है। और 17वें बाब में फरिश्ता यूहन्ना रसूल को बताता है, जो पानी तूने देखे हैं, जिन पर कसदी बैठी है, वो उम्मतें और गिरोह और कौमें और अहले जुबान है। खुदा के फरिश्ते ने यूहन्ना को बताया कि वो पानी, जिन पानियों के ऊपर तूने वो बुरी औरत को बैठे हुए देखा है, असल में वो पानी कौमें हैं, असल में वो पानी उम्मतें हैं, असल में वो पानी गिरोह है, असल में वो पानी अहले जुबान है। जब आप कौमों को, उम्मतों को, ग्रोहों को, कबीलों को, मुख्तलिफ बोलियां बोलने वालों को, अगर जमीन पर कौमें, उम्मतें, गिरोह और अहले जुबान जमा होंगे तो उसको क्या कहेंगे? दुनिया कहेंगे। इसलिए भाई ने कहा कि वो क्या है? दुनिया है। पानियों का क्या मतलब है? पानी दुनिया है। अब मेरे साथ है। और हमने बाइबल से पूछा, बाइबल जी समुंदर क्या है? तो बाइबल ने बताया समुंदर क्या है? पानियों को जब हम जमा करेंगे तो क्या बनेगा? सारे दरिया जब जमा होते हैं तो क्या बनता है? समुंदर। तो लिखा है वो पानी जिन पर कसदी बैठी हो, पानी उम्मतें, गिरोह, कौमें और अहले जुबान है। लिहाजा एक हैवान है। हैवान निकलता है पानियों से, उम्मतों से, कौमों से, गिरोहों से। और ये कौमें, गिरोह, उम्मतें कहां पर बसती हैं? दुनिया में। लिहाजा समुंदर क्या है? समुंदर दुनिया है। लेकिन सवाल उठता है, हैवान क्या है? सवाल हमारे सामने आता है, हैवान क्या है? तो बाइबल में लिखा है, जो हैवान मैंने देखा, जब मेरे साथ मुकाशवा की किताब उसका 13वां बाब उसकी पहली आयत से देखे, और मैंने एक हैवान को समुंदर में से निकलते हुए देखा। उसके 10 सींग और 7 सर थे। कितने सींग थे? 10 सींग और 7 सर थे। और उसके सरों पर 10 ताज थे। कितने ताज थे? उसके सरों पर 10 ताज थे। और उसके सरों पर कुफर के नाम लिखे हुए थे। खुदा का बंदा देखता है कि मैंने जो हैवान समुंदर में से निकलते हुए देखा है, उस समुंदर में से निकले हुए हैवान के 7 सर हैं। 7 सरों के ऊपर 10 सींग हैं। 10 सींगों के ऊपर कितने ताज हैं? 10 ताज हैं। फिर सवाल उठता है, हैवान क्या है? आइए मेरे साथ बाइबल मुकद्दस में दानियेल की किताब का बाब नंबर 7 आयत नंबर 23 बाइबल में लिखा है, उसने कहा चौथा हैवान दुनिया की चौथी सल्तनत है। आमीन। तो बाइबल मुकद्दस ने हैवान किस चीज को कहा है? सल्तनत को। जबराइल दानियेल को तशरीह करते हुए बताता है, दानियेल चौथा हैवान जो तूने देखा वो दुनिया की चौथी सल्तनत है, वो दुनिया की चौथी बादशाही है। मेरे सीसो, हमने 2 क्वेश्चन बाइबल से पूछे हैं। हमने मुकाशवा की किताब का 13वां बाब उसकी पहली आयत में देखा, रसूल कहता है मैंने समुंदर में से एक हैवान को निकलते हुए देखा। उसके 7 सर थे, 10 सींग थे, 10 सींगों के ऊपर 10 ताज थे और उसके सींगों पर कुफर के नाम लिखे हुए थे। हमने बाइबल से पूछा ये समुंदर क्या है? बाइबल ने बताया समुंदर कौमें, उम्मतें, गिरोह और अहले जुबान है, यानी समुंदर दुनिया है। और फिर हमने कहा कि ये हैवान क्या है? बाइबल ने बताया कि हैवान एक सल्तनत है, हैवान एक हुकूमत है, हैवान एक निजाम है, हैवान एक सिस्टम है। और ये हुकूमतें, ये कौमें, ये बादशाहियां, ये सल्तनतें कहां से जन्म लेती है? दुनिया में से। बादशाहियां, हुकूमतें कहां आती हैं? दुनिया में। क्या बाइबल से मुतफिक है? जो बाइबल में लिखा, मैंने आपकी तवज्जो उस पर दिलाई कि बाइबल बताती है कि चौथा हैवान दुनिया की कौन सी वाली सल्तनत है? चौथी सल्तनत है। लेकिन लिखा है कि उसके सरों पर
जो हैवान मैंने देखा था नाम लिखे हुए थे। कौन से वाले नाम? कुफर के नाम। कौन से वाले नाम लिखे हुए थे? सवाल यह है कुफर क्या है? इस हैवान के सींगों के ऊपर नाम जो लिखे हुए थे वो नाम लिखे हुए थे कुफर के। और सवाल उठता है हमारे सामने कि कुफर क्या है? आप बताएं काफर किसे कहते हैं? ना मानने वाला। ना मानने वाले को आपने कहा काफर कहते हैं। किसको ना मानने वाले को? हमारे मुल्क में काफर किसके कहते हैं? वहां पे और किसी को कहते हैं? हर एक के मज़हब में अपना अपना कुफर का जो है वो एक अकीदा है। लफ्ज कुफारा कहां से निकला है? लफ्ज कफारा कुफर से निकला है, यानी कुफर के इवज दी जाने वाली कुर्बानी को कफारा कहते हैं। हमारे कुफर के बदले में यीशु मसीह को अपनी जिंदगी का कफारा देना पड़ा। सो कुफर और कफारा एक खानदान के लफ्ज हैं। काफिर की तो बात नहीं कर रहे, किसे कहते हैं? आपने कहा जो नहीं मानता उसको काफिर कहते हैं। जो किसको नहीं मानता जरूर सोचे, लेकिन सवाल हमें करना है, बाइबल से पूछना है कुफर क्या है? यूहन्ना रसूल की इंजील उसका बाब नंबर 10 खुदा के कलाम में से हम देखेंगे। एक हैवान को समुद्र में से निकलते हुए देखा, उसके 10 सींग और 7 सर थे और उसके सींगों पर 10 ताज थे और उसके सरों पर कुफर के नाम लिखे हुए थे। लेकिन सवाल यह है कि कुफर क्या है? इससे पहले जब आगे बढ़े, उस हैवान की शक्ल बताई गई, उस पर गौर करें तो क्या जो हैवान मैंने समुद्र में से निकलते हुए देखा उसकी शक्ल कैसी थी? तेंदुए की सी थी। और पांव किसके थे? पांव रीछ के से थे। और मुंह किसकी तरह था? अच्छा, उसमें कोई मुमासलत एक जानवर वाली नहीं थी। पांव भी उसके अपने नहीं थे, मुंह उसका अपना नहीं था। अगर उसकी कमर थी तो वो तेंदुए की थी और मुंह बब्बर का था, पांव रीछ के थे। ये खुदा के कलाम में मुकाशवा की किताब के 13 बाब की आयत नंबर कौन सी है? चौथी है। और खुदा के कलाम में जब हम ये तीनों शक्लें इसमें देखते हैं तो अगर आप ऊपर वाली स्लाइड में देखें तो दानिएल की किताब में 7वें बाब में 4 हैवान समुद्र से निकलते हैं। आमीन। यानी जो हैवान हमें मुकाशवा में नजर आता है उसके अंदर दानिएल के हैवानों वाली सारी खसूसियात मौजूद है।